थीम थी जो कि रिसरेक्शन एंड रिनंसिएशन थी, ठीक है। और मेन जो दो थीम्स हैं वो हैं भी यही, इसके इसी से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। कल हमने पास्ट पेपर थोड़े से देखने की कोशिश की थी, उसके अंदर मेन जो है वो 2 क्वेश्चंस थे, एज अ हिस्टोरिकल नॉवल और दूसरा थीम ऑफ रिनंसिएशन एंड थीम ऑफ रिसरेक्शन, ठीक है। यानी कि इंसान जो है हमेशा के लिए जब जी उठता है या मरने के बाद जब हम जी उठते हैं तो उसका हम रिसरेक्शन कहते हैं। कल जो हमने मेजर थीम्स की थी उसके अंदर ज्यादा जो थीम जिसके ऊपर एम्फेसिस हुआ था वो रिसरेक्शन एंड रिनंसिएशन के बारे में था। कल वाले जितने भी पैराग्राफ्स आपने पढ़े हैं रिगार्डिंग रिसरेक्शन, आपने उसको अंडरलाइन कर लेना है, और उसके साथ ये वाला जो है ये बेटा खुद से टाइप किया है, नोट्स जो है बनाए थे थोड़े से रिसरेक्शन और रिनंसिएशन के, ये खुद से टाइप किए हुए हैं, कहीं से भी नहीं है ये, ठीक है। तो स्टूडेंट पूछ रही है मैम ये कहाँ से है, ये किसी भी बुक से नहीं है, ये खुद के लिखे हुए हैं, ठीक है। तो बेटा ये जो है आपने एक दफा इसको देख लेना है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा लिख लेते हैं इस बारे में। अच्छा जी, यहाँ भी देखें थीम ऑफ रिनंसिएशन। Resurrection and Renunciation, A Tale of Two Cities, is rich in meaning and significance because it deals with several themes of all which have been skillfully coordinated and integrated with each other. Some of these themes are obvious and others are less obvious and need careful examination. Dickens shows grand objectivity of historical events but also shows personal projection in the novel. However, Tale of the Two Cities is highly impersonal work with multiplicity of themes. Resurrection is indeed the central theme of Tale of the Two Cities. Resurrection here takes a variety of forms, and almost as every stage we witness some manifestation of it. Resurrection has, of course, a religious connotation and general calls of the image of Jesus Christ rising from his grave on the third day of his crucifixion. But here resurrection requires a secular meaning. ठीक है, वैसे तो रिसरेक्शन जो है उसकी जो रिलीजियस कॉनोटेशन है वो क्या है, जनरली कॉल अप द इमेज ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो कि राइज करता है फ्रॉम हिज ग्रेव, यानी कि इमेज ऑफ जीसस क्राइस्ट है जो कि राइज करते हैं अपनी ग्रेव से, उन्होंने थर्ड डे ऑफ हिज क्रूसिफिकेशन, यानी कि जिस दिन उनको क्रूसीफाई किया गया था उसके थर्ड डे जो है वो राइज कर गए थे। But here resurrection requires a secular meaning. In addition to its religious meaning related to this is the theme of renunciation. Dickens makes use these twin themes in very elaborate manner. Dickens derived both of these themes from Wilkie Collins' play The Frozen Deep, in the performance of which Dickens himself had taken part as an actor. The resurrection of Dr. Manette, first resurrection, the theme of resurrection। अब हम देखते हैं कि ये जो रिसरेक्शन थी वो डॉक्टर मैनेट के अंदर क्या थी, जो कि पहली रिसरेक्शन हमने देखी, दोबारा से एक इंसान को जिंदगी मिल जाना, उसको हम कहते हैं रिसरेक्शन, और थीम ऑफ रिसरेक्शन इज द मेन थीम। अब लेट्स सी कि हर कैरेक्टर किस तरीके से रिस्टोर हुआ था, ठीक है, किस तरीके से उसकी रिसरेक्शन हुई थी। The theme of resurrection is introduced at the very beginning when Mr. Lorry, who is traveling by the mail coach to Dover, sends a message to Talison's bank through the messenger, Jerry Cruncher. The words of Mr. Lorry's messages are recalled to life. Give summary of Dr. Mann's story. Mr. Lorry begins to feel drowsy, and it seemed to him that he is going to Paris in order to dig out a dead man from the grave where he had been long buried. When Laurie meets Dr. Manette, it is truly a resurrection or rebirth after the death of Dr. Manette. Secondly, resurrection, normal life and living with his daughter. ठीक है, उसकी जो सेकंड रिसरेक्शन थी वो क्या थी कि उसने एक पागलपन के प्रिजन के दौर से निकल के अब दोबारा से एक नॉर्मल लाइफ गुजारना शुरू कर दी, और अब वो अपनी बेटी के साथ रहने लगा, starting his medical practice and his giving up the habit of shoemaking and return of sanity in his second resurrection. और जो है वो अपनी मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है, हैबिट ऑफ शू मेकिंग को छोड़ देता है और फिर वो रिटर्न कर जाता है, एंड द रिटर्न ऑफ सैनिटी इन हिज सेकंड रिसरेक्शन।
और दोबारा से भी वो जब डार्ने उसको बताता है कि वो एवरमॉन्ट फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये उसकी सेकंड रिसरेक्शन थी। चार्ल्स डार्ने की जो रिसरेक्शन है वो देख लेते हैं। गिव्स चार्ल्स डार्ने अकाउंट ऑफ ओल्ड वैली वेयर डॉक्टर मैनेट, लूसी एंड कार्टन आर प्रेजेंट, and Darnay is resurrected because of Sidney Carton from a serious crime of treason against England. Darnay's second resurrection, when he is caught in Paris and is prisoned for 15 months at La Force and is resurrected by the influence of Dr. Manet, give account of the case and prevailing condition of Paris after the revolution. Darnay's third resurrection, which is the most important, Dr. Manet's written paper discovered from his cell is read out in the court, and Darnay is sentenced to death. But his death is replaced by Sidney Carton, a kind fellow, give an account his story at the prison. This is his third resurrection. This time he has almost been taken out of his grave. The resurrection of Carton, Carton की resurrection देख लेते हैं. Though Carton dies, but he achieved a resurrection in two sense. Firstly, his death constituted a spiritual resurrection for him, but his sacrificial death, Carton, who has been leading a life of profligacy, is more morally generated. The moral generation or redemption is kind of resurrection for him. Secondly, when Carton conceives his bold plan to save Darnay's life, the words of Christian burial survival are echo in his ears. I am the resurrection and the life, said the Lord. उसने कहा, लॉर्ड ने कहा था, यानी कि जीसस क्रिस्ट ने कहा था कि आई एम द रिसरेक्शन एंड द लाइफ, बी दैट ही दैट बिलीव इन मी दो he were dead yet shall he live, and whosoever liveth and believeth in me shall never die. और वो क्या कहता है, आई एम द रिसरेक्शन एंड द लाइफ, वो कहता है कि मैं ही रिसरेक्शन और लाइफ हूँ। ये किसने कहा था? जीसस क्रिस्ट ने कहा था। और वो इंसान जो कि ये बिलीव करता है इनमें, यानी कि जीसस क्रिस्ट पे, दो ही वर डेड, चाहे वो मर जाए, येट शैल ही लिव, लेकिन वो जिंदा ही रहेगा। एंड हूसोएवर लिवथ, और जो भी जिंदा रहेगा, बिलीव इन मी शैल नेवर डाई, वो कभी मर नहीं सकता। यानी कि जो जीसस क्रिस्ट पे ईमान रखता है वो कभी मर नहीं सकता। देखते हैं द रिसरेक्शन ऑफ कार्टन। दो कार्टन डाइज बट ही अचीव द रिसरेक्शन इज टू सेंसेस। बेशक कार्टन जो है वो एंड पे मर जाता है, सिडनी कार्टन की बात हो रही है अभी, लेकिन दो तरीके से उसकी जो है वो रिसरेक्शन होती है। पहली बात ये कि उसकी एक तो स्पिरिचुअल रिसरेक्शन होती है, और दूसरी वो मर जाता है लेकिन हमेशा के लिए वो जिंदा रहता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जीसस वर्ड्स जो कि उसके कानों में इको कर रहे होते हैं, व्हेन ही इज एक्चुअली गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, जब उसको जो है एग्जीक्यूट किया जाता है। Thus Carton dies feeling sure that he will find himself alive in another world. Carton dies with certainty of resurrection. Carton क्यों मर जाता है feeling sure? क्योंकि he will find himself alive in another world. ठीक है, इंसान जहाद क्यों करता है? मुसलमान का भी यही ईमान है ना कि वो जहाद करता है, और अगर जहाद के दौरान उसकी डेथ हो जाती है तो वो फिर शहीद मरता है। बेसिकली मरने का तो किसी को शौक नहीं होता, लेकिन जब एक इंसान को ये पता होता है कि मेरी अगली जिंदगी जो है वो बहुत रोशन है, यानी कि मरने के बाद जब मैं दोबारा उठाया जाऊंगा तो वो बहुत रोशन है, तो ऑटोमेटिकली वो अच्छे काम करता है। ठीक है, इंसान ऐसे ही नेक नहीं हो जाता। सबको ही पता होता है 5 वक्त की नमाज फर्ज है, सबको पता है झूठ नहीं बोलते, सबको पता है गाली नहीं देते, लेकिन अमल कितने लोग करते हैं? उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि हमारे अंदर जवाबदेही का तस्वर नहीं है। हमें यकीन नहीं है कि एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब एमए इंग्लिश है ना, इसका एग्ज़ाम होने वाला ना, कैसे स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैम जल्दी जल्दी करा दें क्योंकि एग्ज़ाम है। लेकिन जब इंसान ज़िंदगी गुजारता है ना, तो ज़िंदगी के बाद के एग्ज़ाम का हमें यकीन नहीं है, कोई पता नहीं अगले लम्हे स्टार्ट हो जाए। ठीक है, मरने के फौरन बाद आपका असल इम्तिहान तो शुरू हो गया कि किया गया था भाई पीछे दुनिया में, जवानी कैसे गुजारी, वक्त कहाँ पे गुजारा, क्या करते रहे भाई जिंदगी में, नमाज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। लेकिन क्या है कि हमें यकीन नहीं है कि एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, अभी एक अनसर्टेनिटी की एक कैफियत हो गई थी ना, स्टूडेंट को लगता था एग्जाम होंगे नहीं, ऐसे ही पास कर देंगे हम इंग्लिश वाले। तो इसी तरीके से हमारे जहन में भी एक अनसर्टेनिटी है कि हम अल्लाह के आगे ऐसे ही पास हो जाएंगे।
लेकिन जब इंसान के अंदर फेथ होता है ना, तो एक्चुअली वो फिर नेक्स्ट लाइफ के लिए जीना शुरू कर देता है। उसके लिए फिर ये जिंदगी जो होती है वो बहुत छोटी सी होती है, क्योंकि उसका मेन टारगेट क्या होता है, द नेक्स्ट लाइफ। हमेशा इंसान अपने टारगेट्स जो है उसको, अपने एम्स, अपने को टारगेट करके जिंदगी गुजारता है ना। तो यहाँ पे वो जो है श्योरली, क्योंकि उसको यकीन होता है कि एक दूसरी दुनिया उसको मिलेगी, इस वजह से कार्टन डाइज विद द सर्टेनिटी ऑफ रिसरेक्शन, द कि वो अब दोबारा से जिएगा, यानी कि दोबारा से उसको उठा लिया जाएगा एक दूसरी दुनिया में। द ग्रोटेस्क रिसरेक्शन ऑफ द क्लाइम। There are comic and serious resurrection. Resurrection in his novel assumes some comic and grotesque form also. Robert Cly, a spy, is believed to have died and be buried in graveyard of Saint Pancras Church, but later we find him alive in Paris at his old occupation of spying. So a man who was thought to be dead came to life is also a kind of comic resurrection. His normal funeral ceremonies were performed, and he was buried to avoid the wrath of certain person who had become hostile to him in London. यानी कि उसको झूठ मूठ जो है वो जिसे कहना चाहिए उसको दफना दिया गया, ताकि क्या किया जाए, जो वहाँ के लोग थे, उसके लंदन में जो मुखालिफ लोग थे, ताकि वो उनसे बच सके। The comic resurrection of Solomon Barset, another comic example of resurrection, is Barset, Miss Pro's brother, whom she had almost given up as dead, but he appears in Paris. Miss Prose unexpectedly sees him and is astonished through he feels greatly embarrassed to be recognized by her. Jerry Cruncher, a resurrected man, another example of grotesque type of resurrection, is to be found in the nefarious business which Jerry Cruncher is pursuing in order to supplement his income. He and his associate dig out newly buried coffins from his graves and take out the dead bodies in order to sell them to surgeons for medical purposes. Young Jerry has aspired his father as the kind of work, and he too aspires become a resurrected man. उसके बाद है resurrection in the sense of political and social regeneration. Finally, resurrection for the purpose of this novel may also be taken to mean political and social regeneration. The French people have been oppressed and exploited for centuries, have been clamoring for new political and social order without any success. Ultimately, they rise in revolt against the established authority and try to bring about sweeping reforms. Of course, their action involved unheard of criminal acts. The moral of the French Revolution, according to Dickens, is the upper classes everywhere should take a warning from what happened in France and should mend their ways in order to see that poor are contented and happy. अब मोरल क्या था? द मोरल ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू डिकन वो ये था कि ये जो अपर क्लास है एवरीवेयर, उनको जो है शुड टेक अ वार्निंग फ्रॉम व्हाट हैपेंड इन फ्रांस। उनको इसको एज अ वार्निंग लेना चाहिए कि फ्रांस में क्या हुआ, एंड शुड मेंड देयर वेज, और उनको अपने तरीके जो हैं वो सही करने चाहिए कि वो जो है पुअर को कॉन्टेंटेड और हैप्पी रख सके। रिनंसिएशन एज अ थीम देख लेते हैं। अभी तो हमने रिनंसिएशन तमाम कैरेक्टर्स के अंदर पढ़ी, चाहे वो कॉमिक है, हीरोइक है, या फिर जो मेन या मेजर एंड माइनर कैरेक्टर्स हैं। एज अ थीम देख लेते हैं। द अदर थीम लेस प्रोमिनेंट बट pure more valuable is renunciation. It is through a renunciation of his claim to the family estate and the family title that Charles Darley attains a heroic stature in our eyes. Even Charles Darley was still a child. His mother had imposed a duty on him and he had bravely promised to keep faith with her. अच्छा क्लास, ये जो आगे जितना भी थोड़ा सा ही रह गया है इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। सोशल इनजस्टिस है और टेल ऑफ द टू डबलिंग एज द थीम है। ये तो खैर हम पढ़ चुके हैं, आपके डबलिंग वाला तो हम पढ़ चुके थे, लेकिन ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसको आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, आज का जो है सुन लें आप लोगों का आज का जो असाइनमेंट है, दैट इज टेल ऑफ द टू सिटीज एज अ हिस्टोरिकल नॉवल। आपने टेल ऑफ द टू सिटीज एज अ हिस्टोरिकल नॉवल 25 मार्क्स का लिखना है, उसके अंदर कोट्स ऐड करनी है और उसके अंदर पॉइंट्स ऐड करने हैं। नोट्स में आपको शेयर करने जा रही हूँ, उनको खोलिएगा, उनको एक दफ़ा देख के, और उसी में से आपने जो है एज अ हिस्टोरिकल नॉवल जो है, अगर दूसरे नोट्स में से आपको पॉइंट्स मिलते हैं तो हिस्टोरिकल नॉवल का बेटा आज जो है इसकी असाइनमेंट बना लें, ताकि क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
इसकी तो हमने रिनाउंसिएशन वाली तो बना ही ली थी क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हिस्टोरिकल नॉवल जो है इसकी बेटा आज आपने एक अपनी असाइनमेंट बनानी है और शाम तक फिर मुझे सबमिट करवानी है। यहाँ तक अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ लीजिए।